Good morning, students. Students, today we start our next chapter of class 7 science, that is lesson number 8, weather, climate and adaptations in animals. Okay, so today in this chapter we read about what is weather and what is climate, and what's the difference between these both terms, weather and climate, and how the different animals adapt themselves according to the conditions of weather and climate in which area they live. So firstly, the question is कि what is weather? Before starting weather, now if I ask you कि what's the weather of today, आज मौसम कैसा है? So today is Monday, okay, and the 12th July. So if you see outside, the weather is cloudy, है ना, and there is little bit rain. There is a windy weather कि हवा चल रही है, ठीक है, clouds हैं, so that is weather. And before 2 days, if we talk about the Saturday, then the weather is hot, it's sunny. Okay, so that is weather, the atmospheric condition, day to day condition जो रोज का हमें दिखाई देता है, that is the weather. So in this chapter we read about the weather and climate, and the climate is a long term condition of the atmosphere. Like there is summer season, that is for the 4 or 5 month, winter season for the 3 month, rainy season for 1 month. ठीक है, that are the climate. So let's start the this chapter. First paragraph. So this is July. Okay, this is July, and Sumi's sister is to get married on 25th December in Delhi. Her parents want to book a venue for the occasion. Everyone has to plan their choice of clothes that will be comfortable to wear for the wedding. Sumi suggests that they look at the weather forecast for that week. It was something like this table. But देखिए, Sumi's sister has a married got married on 25th December, and they arrange a venue for it, and the different relatives have their choice of clothes ki what type of clothes they wear. So they have to check the weather report, they have to check the weather of that week. So what is the weather report? See, 20th December, maximum temperature is 23, minimum is 7, rainfall 0 means there is no rainfall. 21st December, maximum 27, minimum 7. All there is that up to 25th there is 23 maximum temperature, 7 degrees Celsius is minimum, and 26th December last one is 22 degree Celsius maximum and 7 is the minimum, and rainfall millimeter 2 millimeter rainfall is there. That is the day to day condition, that is the day to day condition, and it is known as the weather. तो अब उनने वेदर रिपोर्ट देख लिया कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में कर लिया है हमने, हीट टेम्परेचर में की है, रेनफॉल है या नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग वो क्या अपना वेन्यू अरेंज कर रहे हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ वेन्यू डू यू थिंक सुमीज पेरेंट्स वुड हैव प्लान फॉर ओकेजन, इंडोर और आउटडोर, कि वो इंडोर प्रोग्राम करवाएं या आउटडोर करवाएं? तो दैट मीन्स देखिए, अगर टेम्परेचर मैक्सिमम डे टाइम तो 23 है और नाइट टाइम क्या है, 7 है, तो अगर नाइट टाइम अगर करवाएंगे तो रात को बहुत ठंड होगी, दैट मीन्स दे हैव टू बी इंडोर. लेकिन अगर दिन की मैरिज है, डे टाइम मैरिज है, तो क्या 23 है तो वो क्या है, टॉलरेबल है, तो वो आउटसाइड हो जाए. तो इट इज़ डिपेंड कि वो भी हम कोई भी ओके प्रोग्राम बनाते हैं. अब जैसे लाइक इन समर वेकेशन यू आर प्लानिंग टू गो एट कोल्ड प्लेस लाइक शिमला, हिमाचल, ओके ना, सो देयर द टेम्परेचर इज लो, बट इन आर पंजाब द टेम्परेचर इज वेरी हाई. ओके, सो कहते it is true that whenever we plan holidays, sports events or get together, we do consider the weather beforehand. ठीक है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी है, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ पहले मौसम कैसा होगा, गर्मियाँ तो नहीं है, ज़्यादा गर्मी है, बरसात है, ठीक है, रेनी सीजन है, समर सीजन है, विंटर से, उन चीज़ को हम सोच के चलते हैं, ठीक है, कि वेदर कैसा, मौसम कैसा होगा, क्लाउडी होगा, सनी होगा, रेनी होगा या विंडी होगा. ठीक है, सो वी कंसिडर दैट वेदर forehand. ठीक है, so it helps us to plan our activities so that we are suitably dressed and feel comfortable in moving around. According to weather we wear the clothes, okay, we eat our things. Okay, there are daily or weekly forecasts of weather on television, radio and even on our mobile devices. Like na, we all have the mobiles now, and we check the weather report if when there is a rain, when previous week we check the weather report on our phone, then the we what information we get there on 11th of July there is the monsoon, and 11 to 23rd of July there is the rainy season, rain. So that is the weather report. Okay, internet and newspaper also help us to provide the weather report. There is the weather forecast that is in your book, so you may read it. Now let's start weather. Then let us attempt an activity and then analyze the result at the end of this activity.
They tell detail that from the old newspaper you collect the information about the maximum and minimum temperature, maximum minimum humidity, rainfall from the newspaper, and you may get that information from your mobile phones also, and you have to complete this data. Okay, so after finishing the activity given in the let us try, this section would have noticed that daily weather report carried information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hour, and it also predicts the weather for the day. तो इस एक्टिविटी से अगर हम नहीं करते, तो हम अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें, तो अगर हम इसी वीक की अगर बात करें कि वी स्टार्ट दिस चैप्टर ऑन मंडे, okay, you observe the temperature, humidity, rainfall of this week from Monday to Saturday, okay, and check what's the maximum temperature, what's the minimum temperature, it will on your mobile phones, and you may use this. Okay, so what information you get? तो फर्स्टली यू हैव टू नो कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। रेनी, यू नो रेनी सीजन है, ह्यूमिडिटी होती है, तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? तो ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर, कि वाटर में कितना, एयर के अंदर कितना वाटर है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। दे फाउंड आउट अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड आंसर दिस क्वेश्चन, कि आपने ह्यूमिडिटी के बारे में पता लगाना है, ठीक है, कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आज कितना था, ठीक है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल कितनी थी, ठीक है, ये आप इस वीक का अपने मोबाइल फ़ोन में से करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर पर करेंगे इस वीक का पूरा, और रेनफॉल पैटर्न, उसकी ह्यूमिडिटी आप चेक करके अपना डाटा बनाएंगे। ओके, और जब ये कॉपी पार्ट हम करेंगे तो इसमें आप नोट डाउन करके मुझे सेंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स सम डेट्स हैव द सेम टेम्परेचर बट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ठीक है, बट ऑल द पैरामीटर्स आर नोट द सेम, कहते आप नोट भी ये भी नोट करेंगे कि कुछ डेट्स में क्या टेम्परेचर सेम है लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल और रेनफॉल लेवल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, तो इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो द डे टू डे कंडीशन, जो डे टू डे कंडीशन है ऑफ द एटमोसफियर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एंड द विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो वेदर क्या है, जो डे टू डे कंडीशन है, आज क्लाउडी है, हाँ ठीक है, प्रीवियसली अगर देखा जाए संडे तो भी क्लाउडी था, सैटरडे क्या था, सनी था, ठीक है, मॉर्निंग और आफ्टरनून टाइम, लेकिन इन द इवनिंग टाइम में फिर से क्या होगा, क्लाउडी हो गया। तो डे टू डे कंडीशन जो एटमॉस्फेयर की है, टेम्परेचर को लेके कि टेम्परेचर हाई है या लो है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या कम है, रेनफॉल है या नहीं है, विंड की स्पीड कितनी है, डैट इज़ द वेदर। सो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड जो अदर फैक्टर्स है जैसे रेनफॉल और विंड स्पीड है, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, जिससे कारण हमारा वेदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे, हर रोज चेंज हो सकता है, वीक आफ्टर वीक अगर बात करें तो इस वीक क्लाउडी रहेगा, रेनी रहेगा, एंड मंथ आफ्टर मंथ, ठीक है, मंथ एक ही मौसम से दूसरी बार वो चेंज हो सकता है, दैट इज द वेदर, ठीक है। A weather station is a facility with instruments and equipments to make observation of atmospheric condition in order to provide information to make weather forecast and to study the weather and climate. What that line mean? कि weather stations ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स है, ऐसे ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिससे क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के की चेक करके बता सकते हैं कि हमारा वेदर फोरकास्ट क्या रहेगा, जो आपके मोबाइल्स पे आता है, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी पे, रेडियो पे आपको शो होता है वेदर फोरकास्ट, वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से क्या है, पहले ही हमें बता दिया जाता है कि इस वीक एक हफ्ते के लिए मौसम कैसा रहेगा, अगले हफ्ते कैसे होगा, कब मानसून आएंगी कब नहीं आएंगी, ये सारा क्या हमें वेदर स्टेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। हेयर डाटा इज कोलेक्टेड डेली विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके डाटा कोलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली बाय द पीपल और थ्रू द कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन्स, या तो वहाँ पे पीपल हैं जो लोग हैं वो डायरेक्टली करते हैं, या क्या है, कंप्यूटर से चलने वाली मशीन्स है जो क्या है हमारे वेदर रिपोर्ट को नोट डाउन करती है, ठीक है। अब रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड रेन गोज। अब कहते हैं ना कि इतने मिलीमीटर बारिश हुई, 20 मिलीमीटर हुई है, 10 मिलीमीटर है, 12 मिलीमीटर है, तो वो क्या है, उसको हम किससे मापते हैं, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड रेन गोज, उसे हम क्या कहते हैं, रेन गोज, दैट इज द पिक्चर ऑफ रेन गोज, ठीक है। इट इज बेसिकली एक मेजरिंग सिलेंडर, एक सिलेंडर की तरह होता है ये, इस टाइप से, और इसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर एक ऐसे फनल होती है। जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल का वाटर इसके अंदर
रेनफॉल का जो वाटर है वो इसके अंदर कलेक्ट होता है, ठीक है। और जितने लेवल तक, जितने मेजरिंग तक, जितने अगर 3 तक कलेक्ट हुआ, दैट मीन्स 3 मिलीमीटर रेनफॉल है। उससे हमें पता चलता है कि आज 3 मिलीमीटर क्या हुई है, रेनफॉल हुई है, ठीक है। तो इट इज़ ए थर्मामीटर अब यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अ थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, ठीक है। थर्मामीटर का यूज़ हम क्या है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मापने में करते हैं, ठीक है। जब हमने 4th चैप्टर में हीट में किया था। सो गुड टू नो, देखे थे, मेटीरियोलॉजी इज ए साइंस दैट डील विद वेदर फोरकास्ट, ठीक है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मौसम की जानकारी, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में करते हैं, उसे हम मेटीरियोलॉजी कहते हैं। विद टाइम इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स क्या आते हैं, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, ओके, विंड स्पीड, दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ठीक है। हैव चेंज अर्लियर इन 15th सेंचुरी, जब 15th सेंचुरी थी तो डिवाइस बनाए गए थे मेजर रेनफॉल एंड द विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। वो ऐसे रेन गोज था, ठीक है, रेन गोज बनाया गया, ठीक है। रेन गोज से क्या करते थे, रेन गोज का जो यूज़ था उसको रेनफॉल मापने के लिए किया जाता था। एनीमोमीटर का यूज़ विंड स्पीड के लिए किया जाता था। और हाइग्रोमीटर का यूज़ क्या, ह्यूमिडिटी की, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है उसके लिए किया जाता था, ठीक है। फिर 17th सेंचुरी आ गई, ठीक है। उसमें डेवलपमेंट हुई काफ़ी, तो बैरोमीटर बनाया गया, ठीक है। वो भी क्या है, एयर प्रेशर को मापता था।